यस, वेलकम अगेन टू माय चैनल फ्री शिक्षा। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लेट अस स्टार्ट। Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day, they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. क्या हुआ, पहेली और बुजो गर्मियों में अपने चाचा जी के यहाँ गए गर्मी की छुट्टियों में, तो उन्होंने क्या देखा, देयर अंकल क्या है, फार्मर, उनके अंकल हैं फार्मर। एक दिन उन्होंने जब वो खेत में गए, अंकल के खेत में गए, अपने चाचा जी के खेत में गए, तो उन्होंने वहां पर कुछ औजार देखे, कुछ टूल्स देखे जो कि खेत में पड़े थे, लाइक खुरपी, सिक्कल, सिक्कल मीन्स वो कस्सी, शॉवल एंड प्लो, प्लो मीन्स हल। ठीक है। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. अपना खाना प्लांट्स खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स. So the organisms which make their food themselves are called autotrophs. So plants are autotrophs. Can you recall how green plants synthesize their own food? अपना खाना कैसे बनाते हैं? With the help of what? Photosynthesis process. So animal including humans cannot make their own food, so where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. नेक्स्ट, इनोसेसरी। सो अगर इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हमें खाना, भोजन अवेलेबल करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। सो आओ अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से। सो सी दिस बॉक्स। टिल 10,000 BC people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food. तो आदि मानव, जो 10,000 साल पहले का जो मानव था, जिसे हम आदि मानव बोलते थे, वो इधर उधर खाने और जगह के लिए, रहने की जगह के लिए घूमता रहता था। वो क्या करते थे? They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture, जिससे हमारी खेती का जन्म हुआ। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. तो ये रही crop की definition। क्या कह रहा है ये? कहता है जब एक जगह पे when plants of same kind, एक जगह पे एक ही तरह के पौधों को उगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? crop बोलते हैं, फसल बोलते हैं। For example, crop of wheat means that all plants grown in field are that of wheat. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of region in which they grown. India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of our country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are Kharif crops. Kharif crops क्या होती हैं? The crops which are sown in the rainy season are called Kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut, cotton, etc. are Kharif crops. The crop grown in winter season are called Rabi crops. Their time period is generally from October to March. Example of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. So 1.2, next 1.2 basic practices of crop production. Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as an agricultural practices. These activities are listed below.
First one, preparation of soil. Second, sowing. Third, adding manure and fertilizers. Fourth, irrigation. Fifth, protecting from weeds. Sixth, harvesting. Seventh, storage. So let us start with the very first agricultural practice, that is preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. तो जो ये लूज सॉइल होती है ये प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होती है ताकि जब उनकी जड़ें गहराई में जाएं तो आसानी से ब्रीथ कर सकें, सांस ले सकें. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? इसका रीजन क्या है? The loosened soil helps in the growth of earthworm. होगा क्या, जो लूजन सॉइल होगी, जो हमारी लूज की हुई सॉइल होगी, जो भुरभुरी मिट्टी होगी, उसके अंदर जो अर्थवॉर्म हैं उनकी ग्रोथ होगी और जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे सॉइल के अंदर उनकी भी ग्रोथ होगी. दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर. ये ऑर्गेनिजम्स हमारे किसान के मित्र होते हैं. सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट. और उसके बाद मतलब एक बार हमारे द्वारा करने के बाद, जब मिट्टी को लूज करने के बाद जब अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की संख्या जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, उसके बाद भी ये मिट्टी को लूज करते रहेंगे और उसमें ह्यूमस ऐड करते रहेंगे. बट व्हाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन? You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. Since only a few centimeters of top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of soil is called tilling or plowing. So, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम मिट्टी को लूज करते हैं और टर्न करते हैं उसको या तो टिलिंग बोल सकते हैं या फिर प्लोइंग. This is done by using a plow. Plow are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. The field is leveled for sowing as well as for irrigation purpose. The leveling of soil is done with the help of a leveler. Some manure is added to soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is watered before sowing. So next जो टॉपिक है हमारा agricultural implements. Before sowing seeds, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tool used for the purpose are plow, hoe and cultivator. So what is plow? Plow मतलब हल. This is being हल जो हम खेतों में चलाते हैं. This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds, scraping of soil, etc. This implement is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses, camels, etc. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of plow is a long log of wood which is called plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow as shown in figure 1.1. देखिए इस फिगर में देखिए ये क्या है बेटा, ये होता है हमारा प्लो शाफ्ट. ये है हमारी फ्लो शाफ्ट जो लकड़ी का एक दस्ता होता है, ठीक है, लंबा. ये क्या है, एक आयरन से बना हुआ एक पीस है जिसको हम बोलते हैं प्लोशेयर. और ये जो है बीम होता है, इसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. Next है hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds
and for loosening the soil, it has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. It is pulled by animals. This is the diagram of hoe. ये क्या है देखो, बेंट प्लेट, ठीक है, ये ग्रिप है, ये उसका हैंडल है, और ये बीम है और ये रोड है. नेक्स्ट, कल्टीवेटर. नाउ अ डेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर. द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम एज शोन इन फिगर. यू कैन सी इन दिस फिगर 1.1c. सो देखो यहां पर एक ट्रैक्टर है जो क्या ड्रॉ कर रहा है, जो क्या लेके चल रहा है, एक कल्टीवेटर, और उससे क्या की जा रही है, प्लोइंग की जा रही है. नेक्स्ट 1.4 सोइंग. सेकंड जो एक्टिविटी है सोइंग. लेट अस स्टार्ट दिस एक्टिविटी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर सोइंग, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmer prefer to use seeds which give a high yield. Farmer उन्हीं बीजों को ही चूज करते हैं बीजने के लिए जिनसे कि उनकी पैदावार बढ़े. आगे सिलेक्शन ऑफ सीड्स. सिलेक्शन ऑफ सीड्स एक्टिविटी 1.1. हम कैसे, हमें पता चलेगा कि जो बीज हम ले रहे हैं बोने के लिए, सोइंग के लिए, वो अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं. टेक अ बिकर, फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम्स. सो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपने क्या ऑब्जर्व करना है, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, व्हाई वुड दे बी लाइटर. डैमेज्ड सीड्स बिकम्स होलो. ध्यान से सुनना, बीज जो हल्के बीज हैं वो तैयार क्यों होते हैं, क्योंकि वो डैमेज होते हैं. जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर से खोखले, होलो होते हैं. एंड आर दस लाइटर, और वो हल्के होते हैं. देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरते हैं. दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड क्वालिटी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वंस. तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के बीज जो घटिया बीज हैं उनसे अलग कर सकते हैं. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tool used for sowing seeds. तो कौन कौन से हैं इसके tools होते हैं. First, traditional tools. The tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. जैसा कि फिगर दिखा रखा है, आगे देखते हैं 1.2a में. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or more pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. देखिए यहाँ पे ये फनल शेप है. देखो इसके अंदर दिखा रखी है, एक फनल शेप दिखा रखे हैं. यहाँ पर बीज डलते हैं और यहाँ से इस पाइप के थ्रू बीज कहाँ जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं. तो ये ट्रेडिशनल मेथड है ऑफ सोइंग का. उसके बाद नेक्स्ट जो है सीड ड्रिल. सीड ड्रिल नाउ ए डेज द सीड ड्रिल्स एज शोन इन फिगर 1.2b is used for sowing with the help of tractor. This tool sows the seed uniformly at proper distances and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. Saves times and labor. So, an appropriate distance between seed is important to avoid overcrowding of plants. मतलब एक जगह पर अगर हम बहुत सारे बीज बो देंगे तो क्या होगा, उसी जगह पे बहुत सारे पौधे हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी. दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. तो हमें क्या करना होता है कि हम सीड ड्रिल का जो यूज करते हैं, ये जो सीड है उसको, जो बीज हैं उनको प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस करती है, प्रॉपर डिस्टेंस पे प्लेस करती है, सो दैट टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स. 1.5 नेक्स्ट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. Soil supplies mineral nutrient to the crops. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmer grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients.
ध्यान से सुनिएगा, कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअरर इन certain nutrients, therefore farmer have to add manure to the field to replenish this soil with nutrients। तो मतलब कंटिन्यूसली अगर हम एक ही जगह पे फसल को उगाते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारी जो जमीन है वो अनउपजाऊ हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। अब क्या करना होगा, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर, जिसकी वजह से फार्मर्स को क्या ऐड करना पड़ता है जमीन में, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मैन्योर ऐड करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर ढंग से अच्छे तरीके से हम मैन्योरिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स होंगे वो वीक होंगे और जो हमारी फसल है वो भी कमजोर होगी, कम होगी। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। Farmer dump plants and animal waste in pits at open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. ये जो decomposition है इसको degradation भी बोलते हैं, इसको हम next chapter में भी पढ़ेंगे। The decomposed matter is used and as organic matter. You have already learned in previous class about the vermicomposting. वर्मी क्लास 6 में आपने पढ़ा हुआ है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, मैन्योर मेड बाय अर्थवॉर्म, मैन्योर मेड बाय अर्थवॉर्म। देखिए इस एक्टिविटी को, एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग आउट ऑफ दीज, नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, मार्क देम A, B एंड C, उनके ऊपर A, B, C मार्क कर दीजिए। To glass A, add little amount of soil mixed with little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. Urea मतलब fertilizer. Take the same amount of soil in glass C without adding anything, as shown in figure 1.3a. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. Keep them in a safe place and water them daily. आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। तो आपने क्या ऑब्जर्व करना है, देखो जैसे इस A, B, C 3 पोर्ट लिए, इनके अंदर एक में क्या डाला हमने, मिट्टी को डाला, एक में मैन्योर को, मिट्टी के साथ मैन्योर, एक में हमने क्या डाला, फर्टिलाइजर, सॉइल के साथ क्या डाला, फर्टिलाइजर। उन सीडलिंग को लगा दिया और इनको सेफ प्लेस पे रखने के बाद 7 से 10 दिन ऑब्जर्व करने के बाद हमने क्या क्या ऑब्जर्व करना है कि किस जो पोर्ट है, मान लीजिए A पोर्ट, B पोर्ट और C पोर्ट, किस पोर्ट में जो प्लांट है उनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है। आगे, डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस विच शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब किस ग्लास के अंदर बेटर ग्रोथ हो रही है। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और किस ग्लास में ग्रोथ है जो फास्टेस्ट है। फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। ध्यान से सुनिएगा, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर जो क्या होते हैं, जो रिच होते हैं, मतलब जिनके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी को ही वो पूरा करते हैं। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये मैन्योर से किस प्रकार से डिफरेंट है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश। इसको बोलते हैं NPK। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and milch. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. तो fertilizers से हमारे को ग्रोथ तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन ये एक सोर्स भी है जिससे कि वाटर पोल्यूशन होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer by organic manure or leave the field uncultivated or fallow in between two crops. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. तो ये एक एडवांटेज है मैन्योर की कि ये जो हमारी सॉइल है, जो मिट्टी है जमीन की, उसके टेक्सचर, उसकी बनावट को अच्छा करती है और उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाती है, मतलब वो पानी को ज्यादा समय तक सोख के रखती है। Also, it replenishes the soil with all the nutrients. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं। This can be done by growing different crops alternately. Earlier farmer in northern
India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. मीन्स ये जो है लेग्यूम्स हैं जो दलन वाली फसलें होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स के अंदर जो नोड्यूल होते हैं, वहां पर हमारे एक बैक्टीरिया मिलता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है हमारी मिट्टी के लिए. फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. कौन सा बैक्टीरिया होता है वहां, राइजोबियम बैक्टीरिया. किसकी जड़ों में, लेग्यूम्स, दलहन वाली फसलों की जड़ों में. These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. They fix atmospheric nitrogen. तो यहाँ पर एक डिफरेंस है between fertilizers and manures. तो fertilizer क्या है, inorganic salt है, manure organic salt है, और you can say that it is a man-made. और जो किससे बनता है, ह्यूमन वेस्ट से और प्लांट रेजिड्यू से. ये फैक्ट्रीज में बनता है, ये फील्ड में ही तैयार होता है. मैन्योर कहाँ तैयार होता है, हमारे फील्ड में ही तैयार होता है. इफ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, ये कोई ह्यूमस नहीं देता, मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करता है हमारी मिट्टी को. फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, एन पी के, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, पोटेशियम फॉर के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम. मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट. टेबल 1.1 ऊपर जो ये दे रखी है टेबल गिव्स द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम पढ़ेंगे कुछ एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर. दिस इज बिकॉज इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो मैन्योर है ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो मिट्टी की, उसको इंक्रीज कर देते हैं. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स इजी. सॉइल को जो है ये क्या बनाते हैं, पोरस बना देती है, मतलब बिल्कुल लूज बना देती है, लूज कर देती है, जिसकी वजह से जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो आसानी से हो जाता है. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं मैन्योर की. नेक्स्ट है जी 1.6 इरिगेशन. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plants. Water is absorbed by the plant roots. जो पानी है ये किसके द्वारा लिया जाता है, पौधे की जड़ों द्वारा. Along with water, mineral and fertilizers are also absorbed. इसी पानी के जरिए ही पौधे मिट्टी से मिनरल और फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब करते हैं. Plant contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. बिना पानी के कोई भी बीज या पौधा पैदा नहीं हो सकता. Nutrient dissolved in water get transported to each part of the plant. Water also protect the crop from both frost and hot air currents. Frost मतलब जमने से और मतलब ज्यादा ठंड में, और जो हॉट एयर करंट्स होती हैं वहां से, मतलब दोनों से ही बचाता है पानी. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हैवी क्रॉप्स ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. तो अगर हमें टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ के लिए अगर हमारे को फसलें हेल्दी चाहिए तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा फील्ड के अंदर. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. जो पानी की सप्लाई हम करते हैं डिफरेंट इंटरवल पे, इसी को क्या बोलते हैं, इरिगेशन. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. एक तो समय और कितनी बार उस फसल को पानी देना है ये फसलों पे डिपेंड करता है. मिट्टी टू मिट्टी मतलब सॉइल टू सॉइल पे डिपेंड करता है. एंड सीजन टू सीजन. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर. गर्मियों में हमें ज्यादा पानी देने की जरूरत पड़ती है. वाई is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? Yes. क्यों? क्योंकि गर्मियों में rate of evaporation क्या होता है, ज्यादा होता है. नेक्स्ट जो है sources of irrigation. The sources of irrigations are wells, tube wells, ponds, lakes, river, dams and canals. सो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स. जो डिफरेंट एरिया के अंदर जो पानी की अवेलेबिलिटी है, जैसे कि कुएं हैं, झीलें हैं और छोटी नहरें या नदियां हैं,
वहां से पानी को उठाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के द्वारा और उन खेतों तक पहुंचाया जाता है। देखो, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। कैटल और जो ह्यूमन लेबर है इस मेथड के अंदर यूज होते हैं। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये सस्ते तो हैं लेकिन ज्यादा एफिशिएंसी नहीं है। दी वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, एक है मोट पुली सिस्टम। इसके अंदर देखो एक आदमी खड़ा है और एक ये पुली लगी हुई है, इसको मोट या पुली सिस्टम बोलते हैं। एक चेन पंप है, ये देखो ये चेन पंप सिस्टम है। नेक्स्ट है डेकली, जो ट्रेडिशनल मेथड की बात हो रही है बेटा ये। फोर्थ वन राहट लीवर सिस्टम, राहट लीवर सिस्टम। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। तो जो पंप्स आजकल यूज होने लगे हैं पानी को लिफ्ट करने के लिए, वो पंप्स किससे चलते हैं? डीजल से, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी से। नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मतलब ये पानी की बचत करते हैं, हम कम पानी में ज्यादा मतलब आउटपुट ले सकते हैं, ज्यादा फसल को पानी दे सकते हैं। द मेन मेथड्स यूज्ड फॉर आर एज फॉलोज। First one, sprinkler system. First one, sprinkler system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. जहां पर पानी की उपलब्धता कम है वहां पर हम स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज करते हैं, लाइक इन राजस्थान। The perpendicular pipes having rotating nozzle on top are joined to main pipeline at regular intervals. When water is allowed to fall through the main pipe under pressure, with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for sandy soil, as shown in figure 1.5a. Next one जो सिस्टम है हमारा मॉडर्न इरिगेशन का जो मेथड है वो है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। होता क्या, बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों में जाता है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप एज शोन इन फिगर। यहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी कहां जाता है? पौधों की, डायरेक्टली पौधों की जड़ों में ही जाता है, रूट्स में ही जाता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इट इज अ boon in region where availability of water is poor. जहां पर पानी की कमी है वहां पर यह मेथड बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। नेक्स्ट है 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Bujo and Paheli went to nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. कुछ अलग प्लांट भी थे। In a field many other undesirable plant may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. इन्हीं को क्या बोलते हैं? weeds. हमारी जो फसलें होती हैं, जो हमारी क्रॉप होती है, उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट अपने आप नेचुरली उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इसी को वीडिंग बोलते हैं। इन वीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. तो वीडिंग को मतलब वीडिंग करना बहुत जरूरी है, वीड्स को हटाना जरूरी है, क्योंकि जो वीड्स हैं ये compete करते हैं फसलों के साथ, किसके लिए? वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। Thus they affect the growth of crop. Some weeds interface even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कुछ एक वीड्स ऐसी भी होती हैं जो फसल कटाई के साथ ही आ जाती हैं, जो हमारे लिए भी पॉइजनस हो सकती हैं, जानवरों के लिए भी पॉइजनस मतलब जहरीली हो सकती हैं। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weed is before they produce flowers and seeds. So बढ़िया टाइम कब है वीड्स को जड़ से निकालने का? जब तक उनके ऊपर फूल और बीज आने से पहले ही उनको क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। हम इसके अंदर मैनुअल जो हम रिमूवल करते हैं उसके अंदर में किस औजार की जरूरत पड़ती है? किस टूल की? खुरपी की। अ सीड ड्रिल is also used to uproot weeds. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D.
These are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer as shown in फिगर 1.6। तो ये देखो एक स्प्रेयर ले रखा है, इस स्प्रेयर की वजह से वो क्या कर रहा है, वीडिसाइड्स को, जो केमिकल्स हैं वीड्स को खत्म करने के लिए वो फार्मर उसका छिड़काव कर रहा है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. तो इन chemicals का छिड़काव करते हुए हमें कुछ precautions, कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। 1.8 नेक्स्ट जो है हमारी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a real crop to mature. Harvesting in our country is either done manually by sickle like this, दातरी है, दाती होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं दाती, और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द calf. This process is called threshing. This is carried out with the help of machine called combine. Combine means which in fact the combination or combined harvester and thresher, मतलब combination of harvester and thresher. Farmers with small holding of land do the separation of grain and calf by winnowing. You have already studied this in previous class. तो winnowing क्या होती है? विनोइंग होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम ग्रेन्स को काफ से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैन, इज कॉल्ड विनोइंग। हार्वेस्ट फेस्टिवल, यहां पर देखिए एक है हार्वेस्ट फेस्टिवल दिए हुए हैं। आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest, the sight of golden fields of standing crops laden with grains fills the hearts of farmer with joy and a sense of well-being. The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all part of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest seasons are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabanya and Bihu. Next 1.9 storage. Storage of produce is an important task. If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insect, rat and microorganisms. The fresh crop has more moisture. If freshly harvested grain seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, losing their germination capacity. Hence, before storing them, the grain are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pest, bacteria and fungi. Farmers store ग्रेन्स इन जूट बैग्स। देखिए इस तरह के जूट बैग्स होते हैं, और मेटालिक बीन्स, जो ड्रम हम घरों में यूज करते हैं गेहूं वगैरह स्टोर करने के लिए, उनको मेटालिक बीन्स बोलते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। तो ये देखिए ये सिलोज है, ये होते हैं सिलोज, ठीक है, सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन। Next, dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large nutrients of grain in big godown, specific chemical treatment are required to protect them from pests and microorganisms. Next, 1.10 food from animals. तो अब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करने जा रहे हैं। What is animal husbandry? देखो यहां पर एक क्या है, मिल्क। हम किसका मतलब कौन से एनिमल्स को रियर करते हैं जिससे हमारे को मिल्क मिलता है, काउ, बफेलोज, है ना, और इसी तरह से उनको बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। क्या बोलते हैं? डेयरी फार्मिंग। इस तरह से पोल्ट्री भी होती है,
ठीक है। एपीकल्चर है, एपीकल्चर में हम हनी बीज को क्या करते हैं, मतलब रियर करते हैं, उनसे हमारे को क्या मिलती है, हनी मिलती है, स्वीट स्वीट हनी मिलती है और वैक्स मिलता है। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in coastal areas are consumes fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plants. 7th class में हमने पढ़ा था. We have just seen that process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Animal husbandry. फिश को हम कौन से, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जहां हम फिश को पालते हैं, एक्वाकल्चर। क्या बोलते हैं उसको, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में हम फिश और प्रॉन्स को पालते हैं और वहां से हमारे को क्या मिलता है, खाने के लिए, मतलब फिश का जो हमारा मांस होता है, ठीक है, और साथ ही साथ फिश ऑयल भी मिलता है, फिश लीवर ऑयल भी मिलता है हमारे को, ठीक है। सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि ये जो मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं ये चैप्टर। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये सारे ही इस चैप्टर को रीड करना, ध्यान से इस वीडियो को देखना, तो इन कीवर्ड्स के आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। और व्हाट यू हैव लर्न ये भी आप देखना पढ़ के, बिकॉज यहां से आपको एक समरी टाइप में पूरा लेसन जो है हमारा तैयार हो जाएगा, पूरा लेसन, ठीक है। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कुछ, अगर इनको करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको उस कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो ठीक है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, कीप ऑन शेयरिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अगेन, bye, take care.